और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಣರಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ತೂ ಕಾಯರ್ ಹೈ. लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। ಕಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪುಕ್ಕಲ, ಹೇಡಿ, डरपोक, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। ತೂ ಕಾಯರ್ ಹೈ. ಕಳೆದ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಣರಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ತೂ ಕಾಯರ್ ಹೈ. ಮೋದಿ ತೂ ಕಾಯರ್ ಹೈ. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ, ತೂ ಕಾಯರ್ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಈಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಜಗ್ಗೋರು ನಾವಲ್ಲ. ತೂ ಕಾಯರ್ ಹೈ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಮೊನ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲ್ಲ ಪದಗಳು. ನನ್ನಪ್ಪ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಆಯಿತು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಆ ಗಾಡೀಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ವಿ. ಅಣ್ಣ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತಿರಂಗದ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಗೈದಂಥ ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತೀರಾ? ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಏ ಮೋದಿ, ನೀನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ಹಾಕು, ನೀನು ಕಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪುಕ್ಕಲ, ಹೇಡಿ, ಡರ್ಪೋಕ್, ಪುಕ್ಕಲ. ಏ ಮೋದಿ, ನೀನು ಪುಕ್ಕಲ. ನೀನು ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ, ನೀನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ನಿನ್ನ ಬೆಲ್ಟು. ರಾಹುಲ್, ನೀನು ಪಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಹುಲ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪುಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ತಿದ್ಯಾ? ಏ ಕಾಯರ್, ಯಾಕೋ ಹೆದರ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದಾನ? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀನು ಹೆದರಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಕಾಯರ್ರೆ, ನೀನು ಹೆದರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಹುಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಹುಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ವಿರೋಧದ ನಡೆಗಳು, ವಿರೋಧದ ಗುಂಪುಗಳು, ವೈರುಧ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಗಳು
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತು ಖಾಯರ್ ಹೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ಪುಕ್ಕಲ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂದು ಆಕ್ರೋಶದ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. अब बोलूं? इजाजत है? मेरे यूपी के भाइयों, बोलने दो. देखिए, यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई. 32 साल पुरानी बात है. मई 1991 की बात है. मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी. अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे. सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी. उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था. थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला. फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं. तो मां ने मना किया. उस समय सुरक्षा का भी बहुत था. तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते. राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा. मैंने मां से कहा मां उतरने दो. राहुल गाड़ी से उतरा. उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा. इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए. सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है. मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था. इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया. उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है. उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं. आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं. आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है. आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता. पूरे परिवार का अपमान करते हैं. कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है. लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता. आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती. आपको जेल की सजा नहीं मिलती. आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता. आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते. क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं. हमारे परिवार का अपमान करते गए. मेरे भाई ने क्या कहा?
संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर, हम पे छापे मारकर, हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए, और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहाँ आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं?
तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है और जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई,
आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस सुन लीजिए, अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई।